President of our IPP party of Tripura, the respected Vice Presidents, GS, AGS, and central workers of IPFT, the respected VIPs and dignitaries who have seated here on dais, and honorable guest, the respected our supporters, warriors, party, silent members who have come here attending the Janata Marjan agitation and rally. In addition, I would like to respect and thanks to the respected print media from local and from Tripura and the intellectuals of the locality of this Delhi. Ang kisa kokoy bay na kisa mas hagra sinay jate awa jagan borok bujina teuy. Engkai borong ba bujina dorkar tongo. Yes, what I was telling here. First of all, I am standing here in front of you with my broken heart, but this heart, unwavering spirit, that is spirit that have been nurtured by my generation for our struggle and resilience and the unyielding desire for our struggle, survival and economy and autonomies. Before going to the main issue, I would like to draw kind attention of the media friends of local and Tripura to the historical overview of our Tripura. Sir, before merger, our Tripura was an ancient independent kingdom. It was ruled by 184 kings. The last king of our Tripura, Maharaja Birbikram Manikka, expressed his desirous to join the Union of India before his death in 1947. Hoping that the Tripuri people, the indigenous people, will be well protected, well secured by the government of India in coming days. Accordingly, the Maharani Kanchan Prabha Devi has signed the instrument of accession in 1949 to deceive to the Union government of India. And subsequently, the Indian government took upon itself responsibilities and duties to safeguard the indigenous people of our Tripura for protection our land, our language, our culture, our tradition, our existence, our survival. It was happened in the history. During his life, the last king, Maharaja Birbikram Manikka Bahadur, in his official order, declared that 7,970 square miles of land has reserved for Tripuri people for future safeguard, which is subsequently reserved by the then government in 1975 during the tenure of the then Chief Minister, Mr. Sukhmay Sen Gupta. It is the reserve. Our Maharani Kanchan Prabha Devi
have joined our Tripura in 1949. During this 1949 to 50, our indigenous people population was 62% out of the total population of Tripura in 1950. At the same time, in contemporary, 4 lakhs and 51,000 above refugees came in Tripura and took shelter in Tripura, which has never been pushed back in Bangladesh. It is settled in Tripura till that. During the period of 10 years, as per census report of Government of India, in 1951, our Tripura population was 4,46,707, and it is rapidly increased to 11,42,502 in 1960. Within these 10 years, what had happened here? We have seen that the decadal growth rate of our Tripura census report was high, 78.7%, whereas the rest states of India had only 21%. This is the decadal growth rate. What happened here? You know, media friends, just think about it. Just imagine, out of imagination. How can possibly you just think it? In brief, I will tell another thing also. Now come to the point of Bangladesh war. 1971, at that time also, more than 11 lakhs refugees comes in Tripura, and the government has given them in camps subsequently settled. They are also not yet pushed back to till that. Despite of the treaty executed in between the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi and the then Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. So, by this way, the illegal migrants coming in Tripura is continuing. It is unabated, not yet controlled. Who has come from Bangladesh are the kith and kins of the local administration. The local administration of Tripura is so much sympathetic to the refugees people. That's why the refugees people who have settled here in Tripura, getting their necessary documents, easily they are getting, like your school certificate, ration card, Aadhaar, Bhotayar card, PRTC, Panchayat, what not, everything they are getting easily. Just for the namesake, government taking it very lightly. It is happening till that. In our Tripura, not only that, the Tripura government is still standing behind the refugees. Even in present, in nowadays, the Rohingya refugees from Myanmar continuing to come in Tripura through Bangladesh. Thousands and thousands refugees, illegal migrants are coming and continuing entrance in Tripura. This is the fact. Other than this, so many issues are there. Some issues I will mention here. In your Tripura, so many forces are there, like your Tripura State Rifle,
This Tripura State Rifle having 14 battalions. Out of that, 12 battalions headquarters, their transit office, their company office are located in TTADC. Land 2,000 required per battalion. Then you just multiply it. 12 battalions of TSR, Tripura State Rifle, into 2,000 hectares. How much? 24 hectares of land is being evicted by the government of state in the name of settlement of Tripura State Rifles. Likewise, so many forces are there. BSF, Border Security Force, CRPF, Assam Rifles, SSB, so many. Here also, I have counted, not less than 50,000 hectares of land is being occupied, and the Tripuri peoples are evicted from their forefathers' land. Why? Now the family, indigenous families, where they have gone? To the hill track, to the hill terrain, for some cultivation only. Just imagine, during the refugees from Bangladesh, they had no food, no clothes, no properties when they have come in Tripura. Now they have everything. They are found now landlords, zamindars, crorepoti. On the other hand, what we are observing, our Tripura people, once son of soil, we are became as BPL, below poverty line. 90% of indigenous people, son of soil, became as BPL. This is the miserable condition, hopeless condition. And in 1985, media friends, in 1985, TTAADC, that is Tripura Tribal Autonomous District Council, was introduced for giving safeguard of the indigenous people, taking the 70% land of Tripura. 1984. In 1985 it is established and action started in 1984. Now this TTADC is depending upon the fund and budget of the Tripura state. Tripura state gives them to the TTADC only 10% of the budget. So by taking this 10% budget, the TTADC authority is failed to fulfill the aspiration of the indigenous people. Very less amount is being sanctioned by the state government of Tripura. After expenditure of salaries of the staff and office expenses, 20 crore, 25 crore, sometimes 30 crores only remains as for development work. It is nothing. It is just like a drop of water to the desert, to the oasis. My dear friends, just think it. And thereby our TTADC, for what it is created, is fully frustrated. No future. That is why we are coming here again and again since 2009. Just taking one core demand. Demand is what? Separate state. We went Tripura land within the area of our TTADC. It is scheduled area as per our Article 2(3) of the 6th schedule in Indian Constitution. It is manageable. It is solution of the Constitution. It can be given by the government of India. It is not absurd. It is in reality. If the government, central government, desires to give us this
Tripura land, they can give us, they can relieve us from the exploitation, from the frustration, from the deprivedness, suppressed, oppressed, deprimed. We are evicted, we are suppressed, we are deprived by whom? By the illegal migrants, by the refugees. There are lakhs and lakhs in Tripura. They have settled permanently. So, on behalf of IPFT, as a vice president of this IPFT, I would like to appeal before the Court of India, before the Honorable Prime Minister and the Home Minister, please give us Tripura land as per condition of the Constitution of India. It is possible so that we can relieve from the all exploitation, all suppression, all indiscrimination made by the other caste, other communities. This is my appeal today. So I will not speak more to our dignitaries and VIPs, our officials will take deliver their expression. Sure, we will fight against the illegal unto our death. Thank you. Former Cabinet Minister of Tripura and President of Indigenous People Front of Tripura, IPFT, and the Chairman of this program, that is observance of 15th Tripura Statehood Demand Day, for demanding creation of full-fledged separate state Tripura through this sitting peaceful sitting demonstrations at Jantar Mantar, New Delhi. Honorable Vice President IPFT Sri Krishna Kanto Jamatia ji, other Vice President Sir Pradeep Debbarma ji and Rajendra Vyang ji, and all our members of executive committees, Fatsal Tai Champa, Tripurani, Tai Dilli wo tamnai, Jara ora Phai Manja Phainai Chini Tiprasa, Bebak Joto Tiprasa Takuk Tai Bukuk Samno, Dilli ni Jantar Mantar hoite, Norogno, IPFT, and its allied organization ni pokko theke, Chini Paiphlaya Hambaiya Paro, Chung Sahar Mano, Chini Tripura, Tui Torui Tabu, Oroi Poroi Nangjak, Chini Bukha Kosto, Tung Tongi Manya, Boni Bagai Chini, Hasuksa Chini Minister, Cabinet Minister Sri Shukla Charan Nuarja ji, Bono Chung, Tini Bo Finally Tongmani Pana, Chung Tripura Kawima Peka, Bini Shauto Kub, Watui, Tui Torui, Chitra Obusta Tongmani Bagai, Boni Bagai, Khadu Konang Tuti Pano, Chung Je Tripura Land Nango, Aboni Bagai, Chini, Sekang Simi, Chini Je, Program Talk Out Klajak, 23 August 2024 Jantar Mantar, Boni Bagai Chungma Phalaika, Oro Je Phai Chok Painai Chini Jota Takuk Bukok, Norogno Paiplaya Hambai, and यहाँ से जो दिल्ली से प्रेस, मीडिया फ्रेंड्स, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आईबी ऑफिशियल्स और दिल्ली से जो लोग यहाँ है, हम लोग का साथ है, सभी को आईपीएफटी एंड इट्स एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से मेरा नमन। ताकोक टाई बुकुक्सन, डियर फ्रेंड्स, with the indigenous people of Tripura, IPFT, and its allied organization, we are observing 15th Tripura Statehood Demand Day 2024 through launching peaceful democratic sitting demonstration at Jantar Mantar, New Delhi today.
like previous years and appeal to extend support for fulfillment our long-standing Tripuran statehood demand for greater interest of the state and Tripura or Tripura people. Friends, as you are certainly aware that the IPFT being a political party, हम लोग डिमांड करके आया है 2009 से आज लगातार हर साल एवरी ईयर मेमोरेंडम सबमिट करके आज 23 अगस्त 2004 अब्दी हम लोग ट्रिपुरालैंड मांग करके डिमांड करके हमारा मेमोरेंडम रीसबमिट आज भी हम लोग करेंगे. And you also know that the demanding for creation of newly full-fledged separate state Tripuraland, it is in elevation with the TTIDC scheduled area. The area is 7,132.56 square kilometer in provision of Article 2 and 3 under the Constitution India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India from 29 October 2009 and resubmitting memorandum through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, and also launching in the state like as hunger strike, sitting demonstration since 209 in and every year. Dear friends, the indigenous people of Tripura are facing chronic multifarious problems during last 75 years, right from the date of merger of princely ruled independent Tripura with Indian Union on and from 15 October 1949. The main problems, हम लोगों का जो main problems, the major problems है, this is population explosion in Tripura state due to enormous infiltration of foreign nationals. This is the one of the major problems in Tripura. Friends, the Aboriginal people, son of the soil, who is the ruler of Tripura, has been reduced to slandering minority due to massive influx, illegal infiltration from Bangladesh and settled in the state from Bangladesh since merger agreement 15 October 1949 from Pollution's alienation of tribal land. As a result, displacement of the indigenous Tripura people from their ancestral homestead and cultivable land since merger agreement, friend, my dear friend. Socially and educationally backward, indigenous people of Tripura in every sphere of life facing crisis of identity in their own homeland. My dear friends, exploitation, oppression, suppression, atrocities, deprivation from their basic minimum requirement as a citizen of India for the last 75 years. Minimum civic amenities, quality education, drinking water facilities, road connectivity, sanitation and health care, electricity, etc. is still dispensed free in the TTIDC scheduled hill area till date. Inequality in every development sector between TTIDC scheduled area and non-scheduled area are drawn a distinctive boundaries under the state. Negligence and procrastination of Kogbrook language. This is the language of indigenous people and its script issue that should be in Roman as per recommendation of all language commission or committee regarding use of script for Kogbrook language
And of course, the demand for inclusion in 8th schedule of the Constitution of India is going on last 75 years. बहन और भाइयों, 2018 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी एंड आईपीएफटी दो दल मिलकर जो पॉलिटिकल अलायंस हुआ है, तब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MOU उसमें हम लोग दो पार्टी मिलकर सिग्नेचर किया है। हम लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड को सॉल्व करने के लिए एक कमिटी होगा जिसका नाम होगा मॉडलिटी कमिटी, और एज पर हम लोगों का जो एग्रीमेंट है, साइन है, MOU है। बाद में 2018 में हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी भी किया। उनका जो रिपोर्ट, अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ त्रिपुरा में गवर्नमेंट चला रहा होते है और कमिटी भी हुआ है, हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी, लेकिन अभी 6 ईयर हो गए हैं दोस्तों। इट इज क्रॉसिंग 6 years. Recommendation also have been submitted, किंतु एखोनो अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 125 अमेंडमेंट बिल 2019 जब बीजेपी आईपीएफटी सरकार में आया 2019 पे, हम लोगों का तब देन जो होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था, और बीजेपी और आईपीएफटी जो सरकार वो 18 नवंबर 2019 में असेंबली में, त्रिपुरा असेंबली में पास करके अभी द कॉन्स्टिट्यूशन 125 अमेंडमेंट बिल, जो बिल अभी पार्लियामेंट में है दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन इनिशिएटिव फॉर 125 अमेंडमेंट ऑफ 6th schedule to the Constitution of India for more autonomy and financial grants to it. The Constitution 125 Amendment Bill 2019 was introduced in Rajya Sabha by the Minister of Home Affairs, Mr. Rajnath Singh, on February 6, 2019. The aforesaid bill certainly to address the cherished danger of the indigenous people of the northeastern region, including Tripura state, wherein the scheduled area and special administrative system is in existence. And accordingly, the Tripura Assembly has been passed an unanimous resolution for the 125 constitutional amendment to empower the TTADC under 6th schedule of the Constitution of India on 18 November 2019. এবং এই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট যে সরকার একটি রিকমেন্ডেশন প্রস্তাব পাঠিয়েছে 125তম সংবিধান সংশোধন বিলের মাধ্যমে, যে বর্তমান যে তৃতীয় এডিসি, এই এডিসিতে 30 জন সদস্য রয়েছে এবং এই 30 জন সদস্যকে বাড়িয়ে 50 জন সদস্য ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করা হবে এবং 42টি দপ্তর, আরও 42টি দপ্তর, বর্তমানে 19টা দপ্তর তৃতীয় এডিসি হাতে রয়েছে, সেটাকে বাড়িয়ে আরও 42টা দপ্তর দেওয়া হবে। এইরকম একটা রিকমেন্ডেশন আমাদের রাজ্য বিধানসভা পাস করে পাঠিয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত 6 বছর চলছে, তার অ্যাসেম্বলিতে এখনো আমরা অ্যাসেম্বলি কবে পাস হবে সেটা আমরা অপেক্ষায় আছি, লোকসভায়, পার্লামেন্টে। डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते होंगे द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश रिसेंटली
जो बांग्लादेश पे जहाँ हो रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका असर सब त्रिपुरा में, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं दोस्तों, ये सारा नॉर्थ ईस्ट पे और वेस्ट बंगाल में भी उनका इफेक्ट हो रहा है। यह आप लोग भी जानता है। त्रिपुरा इज ए मेजर रूट फॉर इलीगल माइग्रेशन from Bangladesh into India with hundreds detected every year. The situation in Bangladesh has a whole bearing on Tripura as it has a sizable population that have integrated into the state's demography following division of India Union in 1947, Bangladesh Liberation War in 1971, and later Sakma infiltration from Chittagong Hill Track in 1980. Besides, continuous immigration over the years, even during the recent communal tension in Bangladesh. It had sheltered nearly 16 lakh refugees from the Bangladesh, rendering the indigenous people population in the state slendering minority due to this massive influx, illegal infiltration, and settled in the state from Bangladesh. Tripura had witnessed a series of influx from Bangladesh. Dear friends, the state had also witnessed sheer violence and was ravaged by insurgency during 1980s and 1990s, with the conflict between indigenous tribal communities and immigrant Bengali due to infiltration from Bangladesh. My dear friends, Tripura share a long semi-porous border of 856 kilometers with Bangladesh out of 4,096 kilometer border with India. The recent political instability in Bangladesh is immediately affect bordering northeastern states like Tripura, Assam, Meghalaya, and porous borders, and illegal migration badly affect the indigenous people where land is aplenty but not the population. Now, the total security safeguard of the Tripura indigenous peoples of the state is more threatened to prevent of influx from across the border due to the current situation of Bangladesh. We, the indigenous people of Tripura IPFT and its organization, appeal to take measures to prevent infiltration of illegal immigrants from Bangladesh. The IPFT and its allied organization arising demand that the creation of a newly full-fledged separate state, Tripuraland, based on TTADC scheduled area of Tripura under Article 2 and 3 of the Constitution of India is the only way for permanent solution of the above enlisted problem to survival Tripuri peoples with our own identity, safety and security or safeguard in our homeland as rest of citizens of the national mainstream. Hence, the IPFP and its allied organizations are observing 15th Tripuraland Statehood Demand Day 2024 today through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar on 23rd August 2024 and submitting memorandum on the demand for creation of newly full-fledged separate state Tripuraland in elevation with the TTADC scheduled area in proviso of Article 2 and 3 of the Constitution of India like previous year. And I on behalf of IPFT party appeal to extend support for fulfillment our long-standing Tripuraland statehood demand for greater interest of the state and Tripura indigenous people. IPFT long live, IWFT long live, Yod IPFT long live, Atisha long live, INW long live, Vande Mataram, Bharat Mata ki jai, Hambai, Jatanana Kulumka. यहाँ सब जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद बोलूँगा। आप भी आज त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद बोलना चाहिए। तो इसीलिए आप सब मेरे साथ जिंदाबाद बोलिए। त्रिपुरा लैंड जिंदाबाद।
त्रिपुरालैंड जिंदाबाद, त्रिपुरालैंड जिंदाबाद। जोर से बोलिए, क्योंकि दिल्ली को हम लोग का मांग सुनना पड़ेगा। त्रिपुरालैंड जिंदाबाद, त्रिपुरालैंड जिंदाबाद, त्रिपुरालैंड जिंदाबाद, त्रिपुरालैंड जिंदाबाद। Do or die for Tripuraland. Do or die for Tripuraland. Do or die for Tripuraland. आज यहाँ पे IPTF का IPFT Indigenous Peoples Front of त्रिपुरा, इसका प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड प्रेम कुमार रियांग जी, आज ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में आए हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, और मंच पे ये IPFT का सभी लीडर, ऑफिस बियरर, रेस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। मैं बिलोंग्स टू कोस्ट राजवंशी। आप लोग सुने हुए आसाम में कामतापुर मूवमेंट का बहुत लॉन्ग टाइम मूवमेंट हुआ, आप लोग का जैसा हम लोग का भी है। आप लोग मेरे भाई है, क्योंकि हम लोग का कोस्ट राजा ने आप लोग का त्रिपुरा राजा का साथ शादी का रिलेशन था, वो रॉयल रिलेशन था, इसीलिए आप लोग मेरे भाई है। तो इसलिए मैं आप लोग को आज ये बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग का जो सेपरेट स्टेट का मांग है, हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग का डिप्राइव, जो हम लोग लॉन्ग टाइम डिप्राइव हो रहा है, इसीलिए हम लोग एक साथ दिल्ली में जंतर मंतर में एक साथ मांग के लिए हम लोग लड़ेंगे। दिल्ली को एक साथ हम लोग यहाँ आके दिल्ली को, हम लोग का डिमांड को एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में तो हम लोग का जितना सेपरेट स्टेट का डिमांड है, जो इंडिजिनियस पीपुल का जो डिमांड है, एक साथ हम लोग लड़ने से हम लोग को ताकत मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सब एक साथ मिलने से हम लोग को ताकत मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम एक साथ आके यहाँ में एक साथ मांग करेंगे, क्योंकि त्रिपुरा लैंड के लिए जब 1947 का बाद 1949 में 15 अक्टूबर में त्रिपुरा लैंड का जो इंडियन डोमिनेंट का साथ राजा ने जो सुक्ति किया था, तो ये राजा ने जो सुक्ति किया था, आज त्रिपुरा में क्या हुआ है आप लोग तो जानते हैं। क्या हुआ है पूरा नॉर्थ ईस्ट जानता है, त्रिपुरा में क्या है, असम में क्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में क्या हालत है। यहाँ पे इंडिजिनियस पीपुल का जो राइट है वो कुछ नहीं है। आज जो इंडिजिनियस पीपुल का त्रिपुरा में जो राइट होना था ये था, आज क्या है, वो जो इलीगल बांग्लादेशी आके घुसपैठिया आके वहाँ राज कर रहे हैं। तो इसीलिए तो जो ये लड़ाई हम लोग को आगे एक साथ लड़ना है। तो इसीलिए आज वो पहले भी इतिहास में बोलता था, आप लोग जानता है इतिहास में 1996 1596 में जब मुगल का साथ एक साथ लड़ाई हुआ था, तब कामतापुर राजा रघुदेव नारायण विश्व महावीर शिलालेख का बेटा महाराज रघुदेव नारायण एंड त्रिपुरा का महाराज
अमर मालिक का साथ एक साथ तब मुगल का अगेंस्ट में लड़ाई किया था। तो वो बात जब राजा ने इतिहास में लिखा हुआ है, आज भी हम लोग ये इतिहास बनाना पड़ेगा। ये बात जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिप्राय है, हम लोग का जो मांग है, तो एक साथ हम लोग दिल्ली में मांग करना पड़ेगा। मैं ये मोदी साहब को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का जो इंडिजिनियस का ये प्रॉब्लम है, बार बार आप झूठ बोलता है जो इंडिजिनियस का ये आप मांग वो बात करता है, वो जो हिंदू का बात करता है, लेकिन हम लोग का जो इंडिया का इंडिजिनियस जो राजा महाराजा का जो ये इतिहास में जो आपका दान दिया था, उसको क्या हुआ? आज मोदी जी इतना झूठ बोल के राज कर रहा है, तो मोदी जी को पूछना चाहता हूँ, ये दिन ज्यादा नहीं चलेगा। ये नॉर्थ ईस्ट जब एक साथ हो जाएगा, ये इंडिया का वो मोदी जी का ये राज नहीं चलेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ, आप लोग एक साथ होइए, हम आपका साथ है। तो इसीलिए एक बार जोर से जय त्रिपुरा, जय त्रिपुरा लैंड, जय त्रिपुरा लैंड, जय त्रिपुरा लैंड। थैंक यू, धन्यवाद। ये त्रिपुरा लैंड एक बीमार है, क्योंकि आज इतना साल हो गया त्रिपुरा लैंड मांगते 1984 में जब ऑटोनोमस बॉडी मिला, तो आज 41 ईयर्स हो गया, 41 साल हो गया, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनता है। और उसके ये क्या है कि ऑटोमेटिक प्रोविजन है आर्टिकल 239A, उसमें क्या बोलता है, स्टेट लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट अगर पास करता है तो उसको ऑटोमेटिक सीटा, क्योंकि उसका प्रोविजंस है जो आर्टिकल 239A में एक प्रोविजन है, अगर इनका कितना कवर करता है, सम कंडीशंस है, वो कंडीशन ऑलरेडी त्रिपुरा लैंड में फुलफिल करता है। क्योंकि ये सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इनको बैठाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में बैठे बाहर डिप्लोमेटिक डायलॉग करनी चाहिए, और उसके तहत ये आर्टिकल का हम लोगों को मुद्दा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि 239A और 239 और 244A इसमें सारा, और 246, 249 ये आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए, और फाइनेंस पावर देना है। अभी हमारा ऑलमोस्ट 60% पावर हमारा पास है, अभी हमको 40% मोर पावर चाहिए। उसके लिए ये लोग ने आर्टिकल 246 को रिकमेंड करना है, और वो लोग ऑलरेडी रिकमेंड, अभी भाई ने कहा, जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 125 एक्ट से, और ऑलरेडी 6 साल पहले एक अमेंडमेंट पास किया है, और असेंबली एक्ट पास किया है। असेंबली एक्ट पास करता है तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सेंटर का रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको स्टेट को फुल पावर होता है, और गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी हु कैन प्रोवाइड द स्टेट। और उसके बाद में पार्लियामेंट अपने आप सोचेगा कि देना है, और अगर इसमें भी नहीं करता है देन वी कैन गो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कमेटी होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये सारा मैटर लेके। उसके लिए हमको टेक्निकल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और एज वेल एज इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जानता हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका अकॉर्डिंग टू दी वर्ड, और जो कोऑर्डिनेशन कर सकता है, जो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस टाइप का आदमी एक लेके, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर में पीआई डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास आउट किया है, तो उसके पास आउट करने में आर्टिकल 368 क्या बोलता है, यहाँ में अमेंडमेंट करता है, एक्ट को अमेंडमेंट करता है सेंटर में। तो हमारा कोई जरूरत नहीं, स्टेट अमेंडमेंट एक्ट करता है तो स्टेट ऑल्सो इज फुल्ली पावर लाइक ए सबसे लेजिस्लेटर। ये लेजिस्लेशन पास कर दिया, हम भी लेजिस्लेटर है हमारा स्टेट में भी, इसलिए हम लोग पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246। उसके बाद में हम आर्टिकल 239 को हम बेस करता है, और आर्टिकल देखिए फाइनेंस में हमारा 281, हमारा 281 आर्टिकल क्या बोलता है, हमको फाइनेंस कमेटी का पावर देना है। तो अमेंडमेंट करने में इनका कितना टाइम लगेगा? अगर चाहे ये माननीय मोदी जी, अमित शाह जी तो ही है सरकार में, ये बाकी तो ये सपोर्टिनेट है, सुबॉर्डिनेट है, मेंबर्स है, हम ये कहता हूँ। और मेरे यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ कि अगर ये दो चाहे तो आपको एक दिन में भी ये मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट करना बड़ी इशू नहीं है इनके लिए। आज तक कितना पार्लियामेंट एक्ट पास किया है, तो इसलिए हम बताता है आप लोगों को कि ये जो मसला है इतना ईजी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 41 साल ये लोग आपको घुमाते रहा, और आज देखिए 75% ऑफ एरिया त्रिपुरा लैंड में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंडर है।
और उस पर टोटल आपका देखिए जब इन लोगों का लेजिस्लेटिव सिस्टम बनाया था, इन लोगों का 13 और एसटी के लिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व के लिए 17 सीट था। अब कहाँ 60 हो गया, 60 में उन लोग का उठा के 40 बना दिया, 43 बना दिया और एसटी ट्राइबल वहीं का वहीं है। इसका मतलब आप लोग देखिए मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गया। दैट मीन्स यू हैव टू, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से माइनॉरिटी को ऊपर उठा दिया और मेजोरिटी को नीचे लेके आया, तो काल तो आप लोग का रहेगा ही नहीं, त्रिपुरा लैंड रहेगा नहीं। और देयर इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टेड विद म्यांमार एंड बांग्लादेश। वहाँ से डे बाई डे more than 1,000 people are entering, trespassing to the India through Tripura। और आप लोग आगे बोलेगा वो लोग एक और उधर आगे कैसा ये लोग इसके मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिनेशन करना है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इनका आधार कार्ड कब बना और इनका इलेक्शन आईडी कार्ड कब बना, इनका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है, और ये यहाँ पैदा हुआ ना बाद में आगे बना, दैट इज हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके साथ परस्यू करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास हो गया तो यू हैव गॉट वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसे लेके बैठने से नहीं चलेगा, सेंटर के ऊपर में भरोसा रहेगा कभी भी नहीं चलेगा। और अभी मैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएनए में, अमेरिका में मैं अभी ह्यूमन राइट्स में मेंबर हूँ, तो आई कैन टेक अप इट इशू इन द यूएनए ऑल्सो, क्योंकि यूएनए भी हम लोग ले सकता है इसको, जिस तरीके से ये हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को काम करने का ज़रूरत है, आगे बढ़ने का ज़रूरत है। और ये आर्टिकल जितना दिया है 281, इसको कोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी क्या चाहिए, फाइनेंस पावर चाहिए, रेवेन्यू पावर चाहिए, सब पावर अपना हो जाएगा काउंसिल करना, तो दैट इज कॉल स्टेट सब हो जाएगा। और हमको सेंटर से ईस्टर से हमको कोई कनेक्शन नहीं है, ताल्लुक ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा सेपरेट हो जाएगा। हमको फाइनेंस पावर 281 हमें अमेंडमेंट करके दे, और स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है। और इससे जो आप लोग का मेंबर जब हाई लेवल कमेटी बनाया, हाई लेवल का मतलब हो गया इमीडिएट काम करना, दैट इज सब फिक्सिंग टाइम होता है, वो 60 डेज 90 डेज, उससे ज़्यादा नहीं होता हाई लेवल कमेटी, क्योंकि हाई लेवल कमेटी मीन्स आवर्स में होता है, घंटा में फिक्स होता है। लेकिन आप लोग का तो अभी इतना 6 साल हो गया सुनता नहीं, इस मतलब कान में तेल डाल दिया, तो ये कहा घुस गया को अभी फाइल ही नहीं मिलेगा काल ढूंढने से। तो इसलिए आप लोग को इसको परस्यू करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग मैं एक सजेस्ट करता हूँ, एक कमेटी बनाइए अभी, टेक्निकल कमेटी। आई रिक्वेस्ट टू वाइस प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइज कमेटी, आई थिंक ही कैन कैपेबल फॉर दैट। सो इन Delhi level I will take up the issue in the Supreme Court. With the Supreme Court Chief Justice we will discuss all the matter, and according to Constitutional Officer we have to go ahead, because Article 281 is the power and is the manager Eastern Assembly they can extend, वो लोग एक्सटेंड कर सकता है। और उसके बाद में आप लोग स्टेट लेवल में एक कमेटी बनाइए, स्टेट लेवल को कोऑर्डिनेट करिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग के पास है एक फाइल बनाइए और लेके आइए। आई विल टेक अप इट यूएनओ, अगर जरूरत पड़ेगा आई विल टेक अप। अकॉर्डिंग देखिए मेघालय ऑलरेडी स्टेट है, वहाँ में नो इशू ऑफ स्टेट लैंड, नागालैंड में नो इशू ऑफ स्टेट लैंड, मणिपुर में नो इशू ऑफ स्टेट लैंड, खाली लड़ाई करा दिया, वो भी गवर्नमेंट का सब है हाथ है, उसको उन लोगों को सोचना चाहिए, आपस में लड़ा के कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन ट्राइबल एक हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो फिर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द हाई लेवल कमिटी मीटिंग व्हेन आई वाज अ मेंबर इन दैट कमिटी। तो ये हम बता चुका था इन लोगों को, देखिए एक दिन ऐसा आ जाएगा आप लोग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये भी एक मामला है। अभी दूसरा मामला है कि अभी जहाँ में हमारा ये नहीं है, टेरिटरी बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ट्रेसपास को कैसा बंद किया जाएगा, और वो बाहर से उधर कब घुस गया, कौन चौकीदारी करेगा, फुल टेक द रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट। तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग बोलना पड़ेगा। और कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी होता है, जो डीएम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल है, डीएम को पकड़ना पड़ेगा, एसएसपी को पकड़ना पड़ेगा। ये आपका स्टेट लेवल कमेटी बनाइए, ये IPTF की तरफ से, उसके बाद में वो लोग परस्यू करेगा, कितना आदमी आया कितना आया, जांच शुरू करा दीजिए आप इमीडिएटली, अदरवाइज यू कैन नॉट डू नथिंग। और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भाई बहन लोग सब ऐसे हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, और आप रिफ्यूजी बन जाएंगे इन 10 साल में। ये पॉलिसी अभी गवर्नमेंट का जो सिचुएशन है, जो पॉलिसी है, जिस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से इसको देखने में मिल रहा है। तो उसके बाद में एक सेंट्रल लेवल में एक कमेटी बनाना पड़ेगा, विल coordinate with the government of India as well as Supreme Court of India in the Constitution, in regards of Constitution and in regards of amendment of this। इसके लिए ये करना पड़ेगा। और यूएनओ लेवल में हम टेकअप करें, सेंट्रल लेवल में हम टेकअप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टेट लेवल में करके एक कमेटी बनाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इनको अल्टीमेट देते हैं। अकॉर्डिंगली विल गिव जस्ट फाइनल अल्टीमेट। अब ऐसा नहीं होगा फिर कल माइनॉरिटी हो जाएगा तो आप कहाँ बात करेंगे,
तो कोई नहीं। और हमारे बहन लोग को ये लोग शादी करके लेके चला जाएगा, वो कहाँ पहुँचा देगा। आज देखिए नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है सर्लाही, वहाँ में रोहिंग्या 17% मुस्लिम हो गया। कहाँ से आया पता ही नहीं, एक भी नहीं था। तो उसी तरीके से ये लोग, क्योंकि वो भी बॉर्डर है, तो इसी तरीके से ये लोग यहाँ में भी घुसा है। त्रिपुरा का बहुत बड़ा एक समस्या है। मेघालय में का ट्राइबल जो है वो थोड़ा अवेयरनेस है, वो लोग इस तरह इमीडिएट एफ्टर करते हैं नया आदमी कहाँ से आया। त्रिपुरा में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि नया आदमी आ रहा है, आप लोगों को बोलने से आप लोगों को दबाया जा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली विजिट किया था तो मैं देखा वो लोग, आप लोग अपना भाषा करता है तो वो लोग बंगाली भी बोलता है, बंगाली बोलता है, मुस्लिम बोलता है, मुस्लिम बोलता है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इसको लिखना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखिए, होम सेक्रेटरी को, इमीडिएटली विद द प्रमाण प्रूफ दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्टेट। तो कमिटी बना के कमिटी की तरफ से एक लेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लिखना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को लिखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद ये लोग का क्या रिएक्शन होता है उसका हमें टाइम एक फिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे उसका इन द मीन टाइम सेंट्रल में हम देखेंगे। ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास है, तो इसका मतलब हमको स्टेप त्रिपुरा लैंड मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। वी हैव टू प्रोसेस, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू पेपर और कोऑर्डिनेशन का बात है। और जहाँ चीफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, जज है, कमिटीज है, उसका स्टेट बनाने का, इस बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का एक कमिटी है। उस कमिटी के तहत वी हैव टू टेक अप द इशू दैट ऑलरेडी इट हैज बीन पास, अभी पास हो चुका है। हम लोग को यहाँ पूछता नहीं, पार्लियामेंट एक्ट नहीं कर रहा है। कोई बिल इमरजेंसी होगा फटाफट पास करता है, तो इसको क्यों पास नहीं करता है? ऑलरेडी इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 and article 368 is that big thing. Once it has been approved by the article 246, there are not very much more difficulty to take up with the article 368. ये हमको देखना पड़ेगा। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी जब हम देंगे उसको साथ साथ होम सेक्रेटरी के साथ बैठ के हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, परोकार करना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेल देम देखिए इतना है तो अकॉर्डिंगली आप इसका क्या है आप बताइए। नहीं तो कमिटी गठन करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, स्टैंडिंग कमिटी बनाए, स्क्रूटनी कमिटी बनाए, दैट इज इन देयर हैंड ओनली। तो इसलिए आप लोग को ऐसे खाली हम आएगा 23 अगस्त को आएंगे, हमारा 41 ईयर्स हो गया, मैटर ऑफ नॉट जॉब, ये कोई मजा का बात नहीं है। और जब आप लोग का 17 सीट था, ये लोग 13 सीट था, आज वो लोग 43 सीट हो गया, तब भी आप लोग चुप है। तो अभी कहा तो आप लोग रिफ्यूजी द गेट आउट, तो फिर भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप लोग? तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा बैठने से नहीं होगा। यू शुड नॉट सिट लाइक दैट वे। एंड ईयरली साल आएगा हम धरना करेगा, उससे रिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। वी हैव टू टेक अप द इशू विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एंड वी हैव टू टेक अप द इशू विद द होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, official. We have to take up the issue now and let us get the reply from the official, then we'll go on diplomatic and political dialogue. Political dialogue last second part में रखिए, first part में we have to go through the officials only because they have got full power, they are the running the country, fourth secretary they are running the country, Chief Election Commission of India, Cabinet Secretary, Home Secretary, External Affairs Secretary, these four secretary are the main backbone of the country. तो यही चार से हम लोग इस तरीके से बात करना पड़ेगा देन वाली। और बांग्लादेश में भी वो हम लोग को बात करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश को भी लिखना पड़ेगा कमेटी, ऐसे नॉर्मल कमेटी नहीं। वी हैव टू राइट टू द बांग्लादेश होम सेक्रेटरी, क्या है भाई, व्हाट इज योर मोटो, व्हाट इज योर व्यूज, व्हाट इज योर न्यूज, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, व्हाट इज योर थिंग, व्हाट इज योर status about our bordering area and migrating entering from your there. We have to challenge. सीधा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तुम्हारा इतना आदमी इधर अंदर आ रहा है, बताओ तुम क्या जवाब है। तो इसीलिए और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ना पड़ेगा कि ऑल डीसी जितना भी डीसी है उनको बोलना पड़ेगा कि भाई जांच करो कहाँ से कब आया, कहाँ पैदा हुआ, कौन हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कौन स्कूल में पढ़ा, अभी आया इसे NRC लाओ, NRC असम में आया, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लेके आता है, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं लाता है। इसका क्या मीनिंग है? वी हैव टू टॉक इन दैट मैनर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अमित शाह जी से बात करेंगे और अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे। हम इसमें आई विल राइट लेटर फ्रॉम माई लेटर हेड, हम अपना से लिखेंगे और आप लोगों को भी कॉपी देंगे। ये सब सीरियसली वी हैव टू टेक अप द इशू और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं तो हम यूएन में टेकअप करेगा। ये माइनॉरिटी हो रहा है। आई पर्सनली विजिटेड टू द त्रिपुरा एंड हम जब गया था देखा बाप रे बाप कहाँ से आ रहा है, तो एक मिनट में आ रहा है। वो जो बॉर्डर में जो आपका रहने का राजा का माहौल है कहीं उधर में देखा तो एकदम एक मिनट में घुस रहा है। हमारा कहाँ से आ रहे थे और नौका है, नौका से आ रहा है, तो वो कौन रोकेगा? विल स्टॉप दैट। तो ये चीज़ को आप लोगों को बात करना पड़ेगा और कमेटी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा।
आज इश्यूज कितना है, और असम में भी है 60-40 काउंसिल चल रहा है, ये सब भी नहीं चलेगा। करप्शन 0 लेवल में लाना पड़ेगा और टॉलरेंस होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन इज मैंडेटरी। करप्शन को तो खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन ही देश को ख़त्म करेगा। और एमंग द ट्राइबल, अभी ट्राइबल बोल नहीं पाते, सीधा साधा होता है, जंगल में होता है, उनके पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है, तो इसका फायदा उठाते हुए वो लोग ने ये काम कर रहा है। तो इसको हम लोग को आगे टेकअप करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेटी बनाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अभी हम लोग खाली ये लड़ाई नहीं हो, अभी ये लड़ाई को हम लोग अंत में जाना पड़ेगा और डिसीजन करना पड़ेगा, स्टेट ट्रिब्यूनल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को इंडिजिनस को इस राइट है और आप लोग फंडामेंटल राइट आप लोग का है। क्योंकि उन लोग कहाँ से बांग्लादेश से आगे अभी ले लिया है या कौन सा है, वो कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें, किसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहाँ का संविधान में लिखा हुआ है, कौन संविधान में है, वो तो दिखा है। तो इसीलिए अभी आप लोग अब फिर अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, उस टाइम में आप लोग का देखिए 17 का जब 12 हो जाएगा और उन लोग का 80 हो जाएगा, क्या कर लोगे आप लोग। तो इसीलिए यहाँ बैठ के जंतर मंतर में करके अधिकारी को, अधिकारी लेवल में लिखना पड़ेगा पहले, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को, और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी को, उसके बाद में हम लिखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, उसके बाद फिर आगे टेकअप करना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्या पास आउट क्या है वो 100 में आप लोग दिखाइए, आई विल टेकअप इशू, उसके बाद हम टेकअप करेंगे इसको। अभी डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के साथ तब जाके आगे काम होगा और इनको करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को ये लोग ना कर नहीं सकता है। और एक पूरा हाई पावर कमेटी इज नॉट ए मैटर ऑफ जॉब। हाई पावर कमेटी का मतलब होता है 90 आवर्स, इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट एक्शन, ये होता है। नहीं तो हाई पावर कमेटी क्या काम, तो नाम के लिए तो ऐसा कमेटी बनाते रहे, दुनिया कमेटी है। हाई पावर कमेटी स्पेशल होता है, स्ट्रिंग कमेटी होता है वो भी, और वो भी कोई इमीडिएट इशू होता है और इमरजेंसी होता है, ओनली फॉर दैट हाई पावर कमेटी बैठता है। आज बारामूला में फायरिंग हो गया, हाई पावर कमेटी बैठा 3 दिन पहले प्रेसिडेंट हाउस में, आप लोग देखो। तो आप लोग नहीं देखता है, इसका मतलब कुछ नहीं देखता, वहाँ पार्टीशन नहीं होगा। यू बी एक्टिव होना पड़ेगा आप लोग का प्रेसिडेंट साहब, ऐसे नहीं होगा, एक्टिव होना पड़ेगा। कमेटी बनाइए, आगे आइए और जाइए, आई विल कोऑर्डिनेट दिस। हम देखते हैं फिर कैसा क्या करना है। वी हैव टू टेक अप द इशू। ऐसे पढ़ने से और हम धरना करने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे स्ट्रिक्ट संदेश देना पड़ेगा, अमित शाह जी को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सरकार चलाना है तो मानना पड़ेगा, उनके लिए जनता सब एक ही है। हाँ, वो पार्टी बनने से ठीक है, हमको स्टेट रूट दे दो, पार्टी भी बन जाएगा। दैट ऑल्सो वी कैन टॉक, दैट डेवलपिंग वैल्यू इफ नेसेसरी। क्योंकि हिंदू तो सब हिंदू है, ये कौन सा मुस्लिम है या कौन सा ये है। तो ये बात नहीं है ना, इसको दबाया जाए, जो बोल नहीं सकता उसको राइट को ख़त्म किया जाए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है संविधान में। फंडामेंटल राइट इक्विवेलेंट सबके लिए, आर्टिकल 15 बोलता है संविधान का, सबके लिए बराबर पावर है, सबके लिए उतना ही है। तो इसीलिए इसको टेकअप करना पड़ेगा। और सेशन आता है, सेशन में वी हैव टू रेज द पार्लियामेंट क्वेश्चन। आप लोग आइए, हम कराता है 60-70 100 MB से पार्लियामेंट क्वेश्चन कर दूंगा, ये मेरा गारंटेड है। हाँ, कैसा अभी लोग का पास नहीं करता देखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ कैंपिंग करके कोऑर्डिनेट कमेटी बना के बैठे मेरे साथ, तब काम कर देता है इसको। इसका इतना बड़ा इशूज नहीं, आपको ऑलरेडी पास आउट है, इजी पास आउट है एसिम से। और हाई पावर कमेटी दिया हुआ है, 6 साल हो गया, कहाँ सो के बैठा हुआ है, कहाँ फेंक के बैठा हुआ है पेपर। इशन करना पड़ेगा ना, पेपर कूड़ा में डालने के लिए नहीं होता, पेपर काम करने के लिए होता है। काम होने के बाद में 3 साल बाद इसको फेंका जाता है, पहले नहीं फेंकता है। तो इतना बोलते हुए मैं अभी टाइम तो 1 घंटा एक्सटेंड हो जाएगा। मैं जंतर मंतर में इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2 बजे तक 3 बजे तक कर लीजिए। तो अब उसके बोलते हुए मैं अभी सबसे ये करता हूँ, आप लोग आगे एक्टिव रहिए, और इस तरीके से नहीं करेगा तो आप लोग राइट नहीं मिलेगा। अब 13 का 40 हो गया, 43 हो गया, और आप लोग 30 सीट बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, कहाँ से आया, आप लोग चुप क्यों बैठा है। आप लोग को बोलना चाहिए क्यों बढ़ गया भाई, कहाँ से आया। हम लोग तो 17 था, 17 का 17 में सीमित है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ को आप लोग यू हैव टू रेज द टेक्निकल और इशूज आपको, और पॉइंट, वाइटल पॉइंट, ये चीज़ ज़्यादा वाइटल पॉइंट है। हम लोग ये वो नॉन टेक्निकल बोल के भी इतना फायदा नहीं है। टेक्निकल में इनको बात करना पड़ेगा, टेक्निकल में लड़ना पड़ेगा, टेक्निकल कमेटी में जाना पड़ेगा, स्क्रीनिंग कमेटी में होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप लोग बनाइए कमेटी, आई विल टेक अप द इशू। थैंक यू। मैं अब त्रिपुरालैंड जिंदाबाद, त्रिपुरालैंड जिंदाबाद। और हमारा भाई बहन को सबको त्रिपुरालैंड मिलनी चाहिए, अमित शाह को देना ही पड़ेगा, नहीं तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अफादी चिनी जत पार्टिसिपेंट्स बेलायक बेलायक लाई peaceful
তিনি নাংমানি দাবি থানায় 2009 সিমি চেং ফাইমানে তিনি 2024 15তম স্টেটহুড ডিমান্ডে जों दिल्लीआव पालाय दङ आबनि बिसिङाव दाख्लै 2024 18 तारिख अगास्ट जों दिल्लीआव रवाना रेहा बाय ट्रेन आबनि परेव जत निस्लाय 1993 नि जराव त्रिपुरा हाव जत निस्लाय दैमा दैसा दै तरै त्रिपुरानि त्रिपुरासा बा त्रिपुरानि त्रिपुरा जाति उपजाति जतन दैयकलुक बाक्सा थिका बाक्सा हाकुवागै थिका बाक्सा फसल गृहपालित पशु ताव मुसुक पुन जतन क्षयक्षति अंजाक भिया जतनिस्लाय रेकर्ड सिबायगैनो ताक्लाय 2024 तेवाइसा त्रिपुरा इतिहास बन्ना प्लावित अंहा आबनि बागै पार्टी आईपीएफनि पक्ष থেকে जों যত ত্রিপুরাবাসী জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষ বন্যায় প্লাবিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভাই ও বোনদেরকে ওনাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই সমস্ত বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের জন্য সবাইকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পার্টি আইপিএফটির পক্ষ থেকে আমার ত্রিপুরাবাসী সবাইকে অনুরোধ করছি আপনি বাগাই যতনি থানিন কইমুং নারগো যত আমাহাই বিরমান ডাংলাই তাকুতি বুকুক যত जों वानसा त्रिपुराबासी प्राय 40 लक्ष बरकनि जे बिरमान नांजाग्रंनो जों जतन केबन उक्लाग माय बिरमान नांजागनि उक्लाग जों जत बासालायनाय जत चुबाचुलायनाय सहयोगिता याक फ्लागलायनाय अब पार्टी आईपीएफनि पक्ष থেকে যতনি থানি কইমুং তো যাই হোক তিনি जों आं आबाबो सानानायो थाने 2004 निसिमै जों जे आंदोलन खायफाय माने जों तिने 15तम स्टेटहुड डिमांड आंदोलन खाई दङ हम लोग बीते 15 साल त्रिपुरा लैंड स्टेट डिमांड करके हम लोग आज भी दिल्ली में शामिल हो तो ये डिमांड ये मांग हम लोग को दी के गए थे ये हमारी स्वर्गीय सर एनसी देव वर्मा जी आज वो हमारी बीच में नहीं है तो इसलिए आज का दिन हम सभी त्रिपुरा से आए भाइयों बहनों सभी मिलके सर एनसी देव वर्मा उनका आत्मा शोक के लिए 1 मिनट हम लोग निरावता पालन करेंगे सभी खड़ा हो जाइए सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जत न कोई मंग जोंनो तिने आसे त्रिपुरासानि बिरमान भियोगनानि बागै जे नांमानि बुथाय जोंनि यागो कारख्लांखा जों आबनो तिनिबो अनर आंदोलन खायतंगो एवं माया सात आंदोलन जों खायथानाय अमाहाय जोंनि समाय तांजागना तिनि जोंनो फुनगै कलांनाय जोंनि फार्मार प्रेसिडेंट ताय जोंनि पार्टी आईपीएफ तिनि अंगै रेवेन्यू एंड फिशारि मिनिस्टार अंगै थांजाक जोंनि बरगुना सार एलसी देव बर्मानो जों 1 मिनट निरावता पालन करै बन्ने आत्मा शान्ति बागै जों वानसक लायनाय टाइम बुद्ध टाइम 1 मिनट स्टार्ट कुमार जतटा हामबाय जत जाने जाने जगह आचोखि चानाय
जों दंथ'गै दिल्ली फैया আমরা টাকা পয়সা হাতে নিয়ে दिल्ली भ्रमणের জন্য আসেনি हम लोग जितने आदमी दिल्ली आए थे वो हम लोग दिल्ली तोड़ के लिए आया नहीं हम लोग 14 लाख त्रिपुरा शाह का भविष्य सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली लैंड राइट सबको हमारे होना चाहिए तो इसलिए हम लोग अलग राज्य का डिमांड करना पड़ेगा तो ये डिमांड आज नया नहीं है आज 15 टाइम हो गया तो जब तक ना मिले तब तक हम लोग ऐसे मूवमेंट आंदोलन धीरे धीरे और से और बढ़ते जाएगा और बढ़ते रहेगा तो जब तक ना मिले यही हमारी काम है तो आमरी भागे जो तननो सावो इतिहास जो तो शिव इतिहास सबाई जाने इतिहास रचना करा যায় না इतिहास रचित হয় ইতিহাস রচিত হয় রচিত ইতিহাসগুলো আমরা দেখতে পাই বিগত দিনের যে ইতিহাসগুলি যদি আমরা খুলে পড়ি তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ত্রিপুরাসা আজকে স্বাধীন ভারতে যোগদান করেছি 1949 15 অক্টোবর আজকে প্রায় 70-73 বছর হয়ে গেছে তারপরেও এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা ভূমিপুত্র বা যখন মার্জার করেছেন তখন 82% জাতিগোষ্ঠী যারা ছিল ওনারা আজকে এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে ত্রিপুরায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে যার কারণে আমরা কারোর শত্রু নয় যাদেরকে ভারতীয় নাগরিক বানানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা সরকার মেনে নিয়েছে আমরা সবাই ভারতীয় কিন্তু আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার স্বার্থে আজকের দিনে আমরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং 1/3 মেজরিটি নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়েছে উন্নয়নের দিকে আমরা পিছিয়ে পড়েছে যার জন্য 1984 সালে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেটি ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেওয়া হয়েছে তাকে বেশ করে ভারত সংবিধানের 2-3 দ্বারা বিচার করে আমাদেরকে আলাদা নতুন একটি রাজ্য গঠন করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আমরা আবেদন আর্জি এবং আমরা আন্দোলনে নেমে আজকে সবার সামনে সমাবেত হতে হয়েছে তো কাজেই আবনি বাংয়ে চুন্ন কেহাবা হামিয়াতা চিত কোনো জাতির বিরুদ্ধে कोई जाति का खिलाफ नहीं कोई धर्म का खिलाफ नहीं जितना पॉपुलेशन अभी त्रिपुरा में है सभी ने इंडिया गवर्नमेंट ने मान लिया कि वो इंडिया सिटीजन है तो हम लोग भी मान लिया हम लोग सब इंडियन सिटीजन है लेकिन जिस दिन भारत के साथ जुड़े हुए थे हम लोग उस समय हम लोग 82% था लेकिन आज 70-75 साल के भीतर अंदर में हम लोग 31% होके सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा गलती किसका है गलती हमरा का नहीं गलती हम लोग का नहीं गलती सरकार का है तो सरकार हम लोग को हमारी जनजातियों को सेव करना अभी भारत सरकार का काम है अगर भारत सरकार देश को रक्षा के लिए सरकार बना है देश में बहुत सारी जाति उपजाति हर स्टेट में सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह रहा है सभी को समान मर्यादा समान अधिकार वो देना सरकार का कर्तव्य है सभी को दिया है उत्तर प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ दिया
उत्तराखंड दिया है, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ दिया है, बिहार को झारखंड दिया है, हाँ, आंध्र को तेलंगाना दिया है, और त्रिपुरा को भी त्रिपुरा लैंड दे दो। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुराई है? आसाम को भी बहुत सारी मांग है, गोरखालैंड, बोडोलैंड, दिमा हासाओ कार्बी, बहुत सारे अपना स्टेट डिमांड करता है। और यूपी में बुंदेलखंड, महाराष्ट्र में विदर्भ, सभी कोई छोटा हो ना बड़ा, सभी अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है। तो सभी को समान अधिकार देना से सरकार का क्या दिक्कत है? अगर जैसे अमेरिका जैसे विश्व का 1 नंबर देश, वहां में सभी को समान अधिकार दिया सकता है, सभी को अच्छी आइन कानून व्यवस्था लेके जीने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। तो उस हमारे देश में भी सभी को अपना अपने अधिकार दे के सभी को मर्यादा देना सरकार का कर्तव्य है। तो आबोनी बाइये चुंगनोस को नाइसिनाई, चुंगनोस को रक्षा खेनाई भारत सरकार। फिर भी चुन 75 साल, 76 साल, 78 साल वहाँ चुनो भारत सरकार महापसाया हमारे चीनी आंदोलन तेब तेजी मांगनाई, चीनी आंदोलन तेब होंगनाई, त्रिपुराई भन्नाई कोमाली तो आज के विगत लगातार 10-12 दिन धरे बृष्टि হয়েছে। 10-12 दिन बारिश के कारण त्रिपुरा में बहुत बुरी हालत में है। फिर भी आज हम लोग दिल्ली में जैसे जंतर मंतर में धरना पर बैठा है, इसी तरह हमारी पार्टी की तरफ से 32 डिवीजन कमेटी है, विभागीय कमेटी है, सभी विभागीय कमेटी में आज का दिन स्टेटहुड डिमांड है। सभी तरफ से ईश्वर को विश्वास करके, भारत सरकार को विश्वास रख के, संविधान पर विश्वास करके सभी डिवीजन कमेटी में आंदोलन और सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये और भी ज़्यादा हम लोग के लिए, त्रिपुरा के लिए खतरा बन सकता है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठेगा तो बहुत बड़ा खतरा और भी हो सकता है। आबोनी बाइये ताकुरो माया हानि जोरावो आंदोलन फिये थानायनि बावो त्रिपुरा वो तौनाय जत तानि ताखुलतै बुखो ताई माफानि समान आइनि हानाव फायो जत दिल्ली जंतर मंतरनि धरना वो तंगै बासागै मासागो तिनि जों नांगमनि काउनो सानानि बागै नांगमनि बुथाइनो जों कारिनानि बागै एवं भारत संविधान विश्वास नारुगै এই গণতন্ত্র হব গণতান্ত্রিক লামানি বিসিংতে যিনি মানথাই সুথাইনা তিখলাই তিবিনানি বাগै যিনি ত্রিপুরা হাওয়া गोबां राजनीतिक दल खायैनो जों आंदोलन खालाय दङ बियाबा जों माइनरिटी जाति गोष्ठी जोंनो डिवाइड एंड रूल पलिसि खायै रां पैसानि लोभि ताई नोंनि क्षमता पावारनि लोभि अमहाय फुनोगै मानथाय सुथानि काव साना थां थानिवा बुखु मुथागै रिजागो या प्रिसेना थां थिङो या गं खावै रिजागो मोखां फुरौना थां थिङो मोखां थुक्लवै रिजागो अमहाय तंमों अमहाय चामों अमहाय खायजामोंनो बै केबो सागै बुजाव फाइग्लाक साग सागनो जों आबनो बिचिवै साग सागनो आबनि हइते साबधान आबनो हइते जों करा वानसक मुंबाय के तंगैनो अचिनि नांमानि बुथाइनो जों कारै माक्लांनाय बियाबा जों कारै क्लांमाय फनो जदि अंसि हांकेबा जोंनि बुसाबुतै ते जेनारेशन टू जेनारेशन फनो जों अमाहाय आंदोलन खायमा थानाय कारण जों এই রাজ্যव जों এই देश 184 जन राजवंश दिनै भारतवर्षनि आइन बाय सेकेंड क्लास सिटीजन नंगे तंतै तंतै दिन सालसा जों थार्ड क्लास सिटीजन को गयनो खायजाय आंगै पाइनाय अ दिन फायासनि सिगाङावनो जों जत ताखुक बुखल ते त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सासो दल खतंनायाव जों थांसा बाक्सा एवं खरां बाक्सा के चिरिगै जिनि अ मानथाय सथेरनो जों तिखाय मातोबनाय ताखुक ते बुखुक सं तो यही मेरी आवेदन है मेरे त्रिपुरा में बैठे भाइयों बहनों मेरा आप त्रिपुरा सा को यही बोलना चाहता हूं अगर हम लोग त्रिपुरा में 184 राजा ने डोमिनेट करके आया है
और आज डेमोक्रेसी कंट्री में मिला के हम लोग को सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ा। तो आज 2024 में सेकेंड क्लास, 2030 में हम लोग थर्ड क्लास भी नहीं, रक्षा नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी जाने के लिए तो जगह नहीं। बांग्लादेश से कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, और नेपाल में भी ऐसा है, कोई अफगानिस्तान में भी ऐसा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यही धरती पर रहना पड़ता है, यहीं पर रहना पड़ेगा। भारत माँ को विश्वास करके रहना पड़ेगा। भारत क्योंकि हमारी माँ है, भारत हमारी देश है, भारत हमारे सब कुछ है। भारत में रह के अपना अधिकार को लेना पड़ेगा। अपना अधिकार को किसी और को दे के हम अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मेरी माँ को विश्वास करके ऐसी माँ की गोद में बैठना जरूरी है। तो इसलिए मेरी भाइयों बहनों को मेरी यही मैसेज भेजना चाहता हूँ, जो भी हो त्रिपुरा में बैठे देखे हुए सुने हुए मेरे भाइयों बहनों, और आज इस मंच पे बैठे सभी लीडर और मेरे साथी संग्रामी भाइयों बहन को यही मैसेज, अगर जब तक ना मिले तो एक साथ रह के अपना डिमांड को हासिल करना पड़ेगा। जब तक हासिल ना हुए तो हम लोग एक साथ रहना पड़ेगा। जो तो अपना कौशल नहीं होता कुक्ति को कुशल आंगरो जो तो वाला नहीं कोई परिवेश कोई सिचुएशन इधर उधर लेके अपना डिमांड को लेके कोई सिचुएशन ऐसी भयानक खड़ा करने में नहीं चाहता। मैं शांति और संप्रीति के साथ भाई बहन को साथ अपना जो मिलना था, अपना जो सर्वाइव था होना चाहिए, कैसे होगा, कैसा होना है, कानून की तरह कैसा करना है और संग्राम कैसा करना है, डिमांड कैसे रखना है, यही यहाँ पर आलोचित किया है। मेरा विष्णु प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशनल लेके बहुत सारी समझा दिया हम लोग को। और मेरा कोई असम से है, वो मेरा कांटापुरी से जो लीडर स्टूडेंट का लीडर साहब, उन्होंने भी समझा दिया और बाकी लीडर ने भी सब कुछ हम लोग को बोला है हम लोग कैसे क्या करना है। तो हम लोग कानून की माध्यम से अपना जो मिलना था वो हासिल करना पड़ेगा। हम ये ताकुराव जों जतन सिनी नांनाय, जतन बुखावनारिनि नांनाय, लेक्सा रिया सामुंगाबो जों सौना नांनाय, ताई विश्वास दंना नांनाय, एके अपर के विश्वास रेखे सबाई के सामने निये, सबाई के संगे निये, सबाई के विश्वास रेखे एके अपर के साहाय्य हाथ बाड़िए निजेर आंदोलन सफल करते होबे। निजेर आंदोलन करते गिए अन्य केउ सहयोगिता नाओ करते पारे, और जारा करबे तारा तो हमेशा करते रहेगा, और जारा करबे ना केउ नाओ करते पारे। तो যাই হোক আমরা আমাদের আন্দোলন জারি রাখতে হবে, আর যতক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ আমরা সবাই সমবেত হয়ে একটি আন্দোলনে সামিল হয়ে আমাদের পাওনা আমরা বের করে নিতে হবে। সেটাই আমাদের মূল কাজ এবং এটাই আমাদের মূল মন্ত্র। আমরা ये ताकुराव जोंनो गोबां इतिहास लोगो कई कवि राजनीति फायदे के लिए अपना डिमांड को लेके कोई पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए हमको बुलाता है और बैठा कुछ बातचीत पॉइंट को लेके बातचीत किया। अगर हम पावर में आएगा तो ये आप लोग को बना देगा, हम पावर में आएगा तो ये कर देगा आप लोग को। लेकिन हम पूरा ऐसा खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा स्थिति हमने बहुत बार मिला, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। अगर अपना पावर मिलने की बात, अपना क्षमता हासिल करने की बात, उनसे मिलने के लिए 1 महीना 2 महीना अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 2 महीना 3 महीना इंतजार करना पड़ा। उसके बाद भी अपना मन मुर्जी अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो हम लोग ऐसे ही बैठना पड़ा। तो चुनाव आएगा जाएगा, मंत्री बनेगा 5 साल वो चला जाएगा, MP बनेगा 5 साल पर, वो अगर ना जीते तो, अगर टिकट ना मिले तो 5 साल की बाद वो भी हम जैसे आम इंसान बन जाएगा। लेकिन जब बनने के लिए तो सभी कोशिश करता है, तो बनने के लिए सभी सब कुछ बोलता है और मिलने की बात कुछ भी नहीं देता है। हम लोग को देखिए हाई पावर मोबिलिटी कब बनाया, 2018 और त्रिपुरा असेंबली में 2018 में मैं भी MLA चुनाव में जीता, मैं भी MLA था। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोविजन आया
अगर अतरमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपडेट कर सकता है। तो चर्चाएं हुए विधानसभा में, तो सभी सर्वसम्मति क्रम वो बिल को सपोर्ट किया, बिल पास हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के त्रिपुरा असेंबली से पार्लियामेंट टेबल में अभी है 19 में, आज 2024 हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने माना, असेंबली में पास किया, लेकिन ऑलरेडी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना के दिल्ली पार्लियामेंट में अभी फाइल आया कब से, लेकिन वो फाइल अभी भी खुला नहीं। तो त्रिपुरा में हम लोग सरकार में है, बीजेपी आईपीएफटी सरकार में है, सरकार वो सभी मिलके ऑपोजिशन को लेके चर्चा किया, चर्चा की बाद वो बिल पास किया, ऑलरेडी पार्लियामेंट टेबल में ले, तो उसको खुल के देने, उसको कार्रवाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दिक्कत क्या है, लेकिन देता नहीं, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में सेकंड क्लास सिटीजन, इंडिया में हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन है। हम लोग का पास ज्यादा वोटर्स नहीं है, कुल मिला के 14 लाख है, तो हम लोग का पास ज्यादा वोटर नहीं है। तो दिल्ली में बैठे कोई लीडर वोटर का जरूरी हो भी सकता है, ये मेरा ख्याल में तो ऐसा लगता है। तो इसलिए हम लोग का काम नहीं किया। आमनी भाई न आवाज मती सुनाई, आवाज उठाना पड़ेगा। जो होना था वो हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आवाज नहीं उठाएगा तो नहीं करे। आम भैया जों जत सिनिनानै खाव तंगमैया जेब्रुनो सम्मान रिए, सम्मान नि कोनो मर्यादा क्रई, आब्रुनो सम्मान रिए लाभ क्रई, जिसको हम सम्मान देता हूं, लेकिन सम्मान के कोई इनाम को कोई भी नहीं मिलता, तो सम्मान दे के हम क्या करें। जेब्रुनो हम सम्मान नहीं, जाके हमें सम्मान देव, सम्मानेर बिनिमय যদি কোনো কিছু না পাই, তাহলে আমি সম্মান দিয়ে আমার কি লাভ হবে। আমরা মনে সাই সাই সব जों जतन मासी নাই, जों माइया के माइया आंदोलन के थाने, माइ के माइ নাই आंदोलन के थाने, माइ बु माइया माइ নাই रिबुरिया रिनाय रिनाय কয় দিনলে जों बाके तंनायबा আমরা जों আবার কেবো শত্রুনি কাউয়া, আবার আলাদা কোনো আইনিয়া, আবার আইন অলরেডি বানাই পাই, অলরেডি আইন আবার স্ট্রাকচার স্টাম্পাই, মানে আইন স্ট্রাকচার স্টাম্পাই আবনা কার্যকরী খেনি উঠো আসুক সে সাকলাইমুং আরো জায়গা ত্রিপুরা তো সাকলে ইয়াকংকে जोंले তাই বেকে তো স্নাইবা आबनी बाये ताकुराव जत जों थाहाबाहा तंदे बेंगनि जुगलियो निजेनो आरो ताकलायदे बेंग गेम थंनाय जोंनो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेनाय भारत जखन आजादी नि फाइट कियो, इंडिया आजादी का फाइट जब किया था, उस समय इंग्लिश 3 लाख समथिंग था, 19 करोड़ पॉपुलेशन था, उसमें से 3 लाख इंग्लिश लोग, बाकी सभी इंडियन। किसी को मुस्लिम तुम अपना फाइट करो, किसी को सिख तुम अपना फाइट करो, कुछ हिंदू तुम अपना फाइट करो, ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा के इंडियन सभी को एक होके आने के लिए 200 साल लगा। और जब एक हुआ, सब समझ में आया, सब समझने लगा कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड पॉलिसी में हम लोग फंस गया, हम लोग अभी और नहीं फंसेंगे, हम सब एक होंगे, देश को आजाद करेंगे। जब फाइट किया था, किनारा दिया, तो इंडिया आजाद हो गया। तो हम लोग को भी अभी ऐसा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है। कोई त्रिपुरा मोथा बना दिया, कोई आईपीएफटी बना दिया, कोई त्रिपुरा मोथा एस, आईपीएफटी बी, आईपीएफटी सी, कोई को गणमुक्ति परिषद, कोई को एसटी मोर्चा, कोई को जनजाति मोर्चा, ऐसा बना के अपना नीति को तोड़ दिया। किसने दिया? पॉलिटिक राजनीति। इसलिए हम लोग को कमजोर समझ रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना के हम लोग को जो मिलना था, जो संविधान में था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, उसको लागू करके देना था। लेकिन हम लोग एक साथ होके हम लोग हमारी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हर मुसीबत हम लोग को सामना करना पड़ा। तो पॉलिटिकल के कारण से डिवाइड रूल पॉलिसी करके हम लोग को एक
किसी का पीछे किसी को लगा दिया, मेरा पीछे कोई और को लगा दिया, कोई और का पीछे किसी और को लगा दिया, ऐसा करके हम लोग को यूनिटी को तोड़ दिया। तो अपनी भाई वो मैसेज ना जों जत नसिनी नांगनाय जत जों सजाग तुंनि नांगनाय स्ट्रेट तुंनि नांगनाय तेचिनि आंदोलन न जों काहाम के तुबिना नांगनाय आमनि भाई आं ट्रेक आउट बां साया जोंनि टाइम फोना आस्ते आस्ते पाइनि दिगे थां तोहा ओमफ्राय जों रैली साखेनाय रैली खेपायो माउन्टनि प्रग्राम जखन पाइनाय एरपरे जोंनि कायसा रैली तंनाय रैलीनि परेयाव जों स्टैंडिंग रैली होते वक्त रैली में हम लोग इंटरव्यू देंगे। हाँ अब हम भैया आंतरे कौ बंग सारी नहीं है हम ये जो तो लीडर्स जो तो फाइनेंस संग्रामी तकरूम को क्या आवाज़ चुम्फों हाँ कुत्ते पाली दान हमको सामने हम सारी भाई वो बैठो हम लोग हमारी मेमोरेंडम सबमिट करके आया है। ये है रिसीप्ट 23 अगस्त 2024 अब चिनी मेमोरेंडम सबमिट है रिसीप्ट कॉपी चिनी नांगमानी न जों मार्टी खायनाय एवं होम मिनिस्टार बाय प्राइम मिनिस्टार बके होम मिनिस्टार ताई कैसांहा अब प्राइम मिनिस्टार जत जगह न जों रिफायहा आबुनि बाय ताखुराव चिनी जे नांगमो जों अब सब समय न बसी बसी रिमाइंडर मा खायनाय जे माया सानो जों आवहाय सामं खायमा थांनाय आमबागे चिनि जीएस ताई चिनि ट्रेजारार अमित ब्रकनै दाबोगो थाङै पारायनै पार्लामेन्टनि सेक्रेटारि अफिसआव थाङै होम मिनिस्टार बाय ताई प्राइम मिनिस्टारनि अफिसआव बराव बाय मालायगै रिसिभन बराव साबमिट खाय थाका आबनि बागे बेलाय बेलाय हामबाय ताई तिनिनि गावरां ताई लाउरिसिया ताई वाइसा आं जत न काबकनाय जत बाचादि फ्लेट दिसादि पाइथांनि माने स्टेजनि प्रग्रामनि पाइथांनि स्लोगान आं रोनाय आनि लगे लगे जत हिंलायदे लास्ट स्लोगान रैली इनका आलका IPFT long live IPFT long live